say anything, happy birthday to you. May this be a wonderful day and a wonderful year. God bless you with good health, which is, I think, the biggest thing that everybody wants these days. And I'm honored that you asked me to be the chief guest. I feel very embarrassed when somebody says chief guest because, you know, in front of a personality like you, I'm nobody. And I was very honored that you thought me worthy of this. Also the publishers, thank you very much for having me over. And I think आपने बहुत सही कहा that they gave you the freedom to publish the book in the way that you want. Because जब मैं किताब पढ़ रही थी and frankly I read the English version क्योंकि हिंदी पढ़ने में मेरे को थोड़ा वक्त लगता है सिर्फ 5 दिन थे तो मैंने मैम को बोला कि मुझे इंग्लिश वर्जन भेज दो मैम ने कहा कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर दूंगी इट डजेंट मैटर अगर आपने पढ़ा भी नहीं तो विच इज़ लाइक सच अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट आर जर्नलिस्ट टुडे आर जो बुक इवेंट्स पे आते हैं बिना किताब पढ़े जो आके यहाँ पोडियम में बैठ जाते हैं और इसी हॉल में मैंने देखा हुआ है मैं उस तरफ बैठी हूँ वो इस तरफ बैठे हैं और वो किताबों के बारे में मतलब इतना कुछ बोल जाते हैं जब उन्होंने पढ़ा नहीं है इट्स सो क्लियर और वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर बोलते हैं किताब के ऊपर नहीं पब्लिशर के ऊपर नहीं राइटर के ऊपर नहीं अपनी ज़िंदगी सो व्हेन मैम सेड दिस आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड जब उन्होंने कहा कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं मैम मैं पूरा पढ़ूंगी बिना पढ़े मैं बुक इवेंट पे आती नहीं हूँ इसलिए मैं आई डू वेरी फ्यू बिकॉज अनलेस आई हैव थॉरली रिसर्च्ड द बुक आई डोंट डू इट सो No, not at all. My pleasure reading it, and I've learned a lot from it. And for the publisher to publish a book like this, firstly, because there are so many photographs. If you see any author, I mean, I'm sure many of you are writers also, and any author goes to a publisher and say कि मुझे किताब है, वो कहेंगे कि we want 10 pictures, we'll give you 6 pages और उसमें आप जो भी तस्वीरें छापना चाहते हैं उसमें तस्वीरें छाप दीजिए. The freedom to publish a book like this with so many photographs and I think it's a new kind of publication style because not only have you given proof evidence that आपके पास so much you know so what happens is usually जब किताबें लिखते हैं लोग तो नीचे there is like a bibliography there is some kind of you know कि मैंने this paragraph was from here this was from here this is a lived in book मतलब हर चीज़ अपनी experience से मैम ने लिखी है so you know when Indra Nooyi ji says that it's something that we all learn fears छोड़िए मैम आप fearsome हैं those fearless and all these words adjectives मैम के साथ जुड़ी हुई है मैं जब walk कर रही थी इनके साथ I was just telling somebody 10-12 साल की लड़कियां आके मैम can we take a photograph with you ma'am are you Kiran Bedi they were born after she superannuated right मतलब they are not just it's my generation of course हमने से बहुत सारे लोग you know I mean at least I wanted to become a cop because like for me she was like an idol मैं भी किरण बेदी बनूंगी you know so my generation didn't grow up saying मैं माधुरी दीक्षित बनूंगी it was मैं किरण बेदी बनूंगी पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है IAS एग्जाम I took the easy way out and became a journalist instead. इतने एग्जाम नहीं पास करने पड़ते मैम so but yeah what Indra Nooyi ji said that you know there are certain rules of governance जो which I saw for myself. I had gone to Puducherry for a vacation with my son because he was going abroad to study तो मैंने सोचा जैसे सिविल सर्वेंट्स भारत दर्शन करते हैं वैसे मैं अपने बच्चे को एक बार you know इंडिया के दर्शन कराऊं टेक हिम टू प्लेसेस जहाँ पे वो जाएगा नहीं एक बार अमेरिका चला गया पता नहीं वापस आता है कि नहीं तो मैंने कहा लेट मी टेक हिम सो आई वेंट टू पुडुचेरी 3 दिन के मैंने होटल बुकिंग की वो 2 दिन में ही वॉज डन विद इट वापस जाना चाहता था तो मैंने कहा आई हैव कम आउट हियर आई हैव टू गो फर्स्ट एंड सी व्हाट मैम इज़ डूइंग मैंने सोशल मीडिया में देखा सो आई वेंट इन नो अपॉइंटमेंट नथिंग एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली नथिंग आई जस्ट वेंट देयर एंड आई सेड कि मैंने अंदर जाना है आप कौन है आपने टोकन नहीं लिया आप कैसे जा सकती हैं मैंने कहा आप बस बोल दीजिए पत्रकार आई हैं नाम दीजिए डिटेल्स दीजिए ऐसे नहीं नाम वाम कुछ नहीं पहले आप आई जस्ट वांट टू गो इन ये जनता दरबार है तो मैं जाऊंगी एज अ जनता पर्सन सो आई वॉज अलाउड इनसाइड किसी ने रोका नहीं मुझे आई गेस मैं भी थोड़ा बहुत फियरलेस लगती हूँ सो okay so I came in ma'am and so of course ma'am सबसे मिल रही थी तो my turn came towards the end because मैं end में आई
सो आई वेंट इनसाइड हर रूम एंड मैंने देखा कि बैठने के लिए सिर्फ एक दो कुर्सियां हैं, मैम खड़ी हैं, टेबल के पीछे नहीं बैठी जैसे ये टेबल, नो शी हैड स्टैंडिंग टेबल्स, समथिंग विच वॉज रेवोल्यूशनरी देन. आजकल तो इट्स अ कॉन्सेप्ट वे सारे सेलिब्रिटीज करते हैं, बट शी हैड इट देन कि खड़े खड़े. सो देन आई सॉ you know what she was doing, meeting with people. I saw for myself, and then I told her that मैम 2 दिन में मेरा बच्चा वापस जाना चाहता है कि बहुत हो गया. टूरिज्म आप कहते हो बट ऑन द ग्राउंड नहीं है. ही सॉ हर जगह गंदगी जो मैम ने अपनी किताब में लिखी है, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू क्लीन अप अ प्लेस. एंड शी विल टेल यू जो ब्लॉक्स आती हैं, आप किताब में पढ़ोगे कि इट्स अ सिस्टम इन द माइंड, यू नो, लाइक कुछ खाया और वहाँ फेंक दिया, प्लास्टिक, पिकनिक के लिए चले गए, गंद मचा के वापस चले गए क्योंकि मेरा काम नहीं है सफाई करना. शी विल टेल यू हाउ, यू नो, बाथरूम्स, स्वच्छ भारत के अंडर इतने सारे शौचालय बनाए गए लेकिन सफाई करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ताला मार के रख दिया जाता है. नोबडी इज विलिंग टू क्लीन इट. वाई? बिकॉज वी हैव दिस होल कास्ट सिस्टम इन माइंड कि बाथरूम साफ करने के लिए कोई और करेगा, और कौन करेगा? वो एक पर्टिकुलर कास्ट का बंदा ही करेगा आके. और अगर वो नहीं करना चाहता, क्योंकि इन साउथ इंडिया तो एजुकेशन लेवल्स आर हाई, तो वो अगर मैट्रिक पास है या इवन हाई स्कूल पास है, वो टॉयलेट साफ करने का काम नहीं करना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता जो उसके बाप दादा करते आए हैं. सो ही वुड रादर सिट, यू नो, अनएम्प्लॉयड एट होम रादर देन क्लीन द टॉयलेट. तो मैम ने, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग आउट 1 or 2 इंसिडेंट्स जो किताब में मेरे को बिल्कुल, इट जस्ट स्ट्रक मी एज सो करेक्ट, बिकॉज शी जस्ट वेंट आउट एंड सेड कौन साफ करेगा भाई, कोई तो बताओ. तो वन लेडी गॉट अप एंड सेड ठीक है मैं करूंगी, I will take up. Why a lady? Why do you think a lady picked up? Because women like us are the ones who are the biggest sufferers of bathrooms not being there. जब 2014 में मोदी जी ने रेड फोर्ट से, you know, he talked about bathrooms, I was like, my first reaction was like my mother's or my father's or anybody else की, अरे प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से बाथरूम के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों? I mean, बड़ी बातें होती हैं, राइट? इंडिया पाकिस्तान की बातें होती हैं, GDP की बातें होती हैं, EU की बातें होती हैं, टॉयलेट्स की बात कौन करता है रेड फोर्ट से? दैट वॉज द फर्स्ट रिएक्शन. आई हैड टू करेक्ट माई सेल्फ, यू नो, एंड से माई गॉड, ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच इफेक्ट मी. वाई डज इट इफेक्ट मी? यू वुड थिंक कि मैं अगर जाती हूँ, लाइक अ पर्सन फ्रॉम माई बैकग्राउंड, मैं एडिटर लेवल पे पहुँच गई हूँ, जब मैं कवरेज के लिए जाती हूँ, इलेक्शन की कवरेज, व्हाट इज़ माई प्रॉब्लम? मैं किसी भी 5-star होटल में घुस सकती हूँ, बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ, बट नहीं होता. आई एम टेलिंग यू, लखनऊ से लेके अमेठी तक जब आप कवरेज पे जाते हो इलेक्शन के लिए, देयर इज नो बाथरूम. तो हम लोग बिना पानी पिए, विमेन जर्नलिस्ट, बिना पानी पिए हम कवरेज करने जाते हैं, क्योंकि अगर हम, वी हैव टू गो, अमेठी तक पहुंचो, अमेठी से वापस लखनऊ आओ, उसके बाद बाथरूम जाओ. मेन कैन गो टू द बाथरूम, आई मीन नॉट बाथरूम, दे कैन गो बिहाइंड द बुशेस. हम लोग कहाँ जाएंगे? इट अफेक्टेड मी. सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट, you know, a class of women who were affected, everybody, of course a class of women also, क्योंकि जब you have to go to the forest to relieve yourself, we know what happens to them. They are going without anybody assisting them. So there are whole, I mean, अब तो अक्षय कुमार तक बात कर रहे हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा निकली है, पर उससे पहले, बिफोर टॉयलेट भी प्रेम कथा, there was ma'am doing this on the ground. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. और जैसे उन्होंने कहा अबाउट, यू नो, चीफ सेक्रेटरी के साथ, नाउ द थिंग इज, हम लोग इस तरफ बैठते हैं ना, हम लोग, हमें दिक्कतें होती है कि हम गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, हमें दिक्कत होती है कि हम गार्बेज नहीं उठाया, हमें दिक्कत होती है कि हम एक टहनी नहीं काट सकते जब वो घर के अंदर आते हैं क्योंकि हॉर्टिकल्चर वाले आ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे. तो रात को करो, क्योंकि MCD NDMC रात को नहीं आता चेक करने के लिए. मतलब ऐसी चीज़ें वी एज कॉमन पीपल फेस. व्हाट हैपन्स ऑन द अदर साइड? On the other side, somebody wants to bring about a change. जैसे मैम करती हैं, she wanted to bring about a change. लेकिन एक सेट पैटर्न है. कोविड के दौरान people were taking advantage. People were mercenaries. They were taking advantage of something which was so big, a pandemic, and trying to profit from that. मतलब उस वक्त तो अपनी इंसानियत को जागने दो. नहीं, वहाँ पे भी profit. So, you know, frustration when you trying to change a system, because हाँ, हम लोग सब admire किरण बेदी, oh fantastic, पर अगर कहीं किरण बेदी ने हमारे
कंफर्ट जोन में कुछ करने की कोशिश की, तो हम उसी किरण बेदी को हम पुल डाउन करेंगे. एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम सेइंग पीपल लाइक अस. अगर कल को ये मैम क्रेन लेके आती हैं और आप जो गाड़ी गलत पार्क कर रहे हो उठा के ले जाती है, तो आप that same Kiran Bedi you will criticize, because it is very hard to fight a system which is so entrenched. It's very hard to stick to a value-based system to bring about changes in people's lives. बहुत सारे किस्से हैं. It's like a manual. मैं किरण बेदी जी से पूछूंगी बाद में, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर के जो झगड़े चलते हैं, मतलब हमने दिल्ली में भी देखा हुआ है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट. और आज आप देख रहे हैं गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के बीच भी हो रहा है. आई मीन ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड बिफोर ऑल्सो. उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कितनी सरकारें गिरी हैं बिकॉज ऑफ गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर. बट देर आर मेनी इंस्टेंसेज, आई फील, आप जब किताब लेके जाएंगे तो डू सी अबाउट हाउ द स्कूल सिस्टम, वी आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी लिटरेट पीपल जो अपने सिग्नेचर्स कर लेते हैं, 2 लाइनें लिख देते हैं एंड वो लिटरेसी रेट में आ जाएंगे. दे आर लिटरेट, बट एक्चुअली द एजुकेशन सिस्टम हैज़ नॉट गिवन देम एनीथिंग, equipped them to get a job. So कहने को तो हमारे पास इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन वो दे आर नॉट equipped. So मैम विल एक्सप्लेन टू यू इन द बुक कि कैसे वो जाती हैं और एंड शी नोटिसेस कि वो मिड डे मील स्कीम खाना खा के वो चले जाते हैं, पढ़ाई तो करते नहीं है बच्चे, दे जस्ट लीव. ये सिस्टम में आता नहीं है. वाई? बिकॉज वो मिड डे मील स्कीम किसी को कॉन्ट्रैक्ट गया हुआ है, वो उससे प्रॉफिट ले रहा है, जो मतलब इट्स अ होल चेन. तो वो चेन कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. बच्चे अगर आएंगे तो वही स्कूल टीचर जो अटेंडेंस मार के बाहर जाके ट्यूशन सिखा लेती हैं, तो उसको क्लास लेना पड़ेगा, 3 घंटे स्कूल में बैठना पड़ेगा. दीज आर ऑल सिस्टम्स सो एंडेमिक. अगर कोई चेंज करना चाहता है ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. मतलब हर बारी मैम को दिल्ली से डंडा मारना पड़ता था, क्योंकि उनके डंडे का असर पड़ ही नहीं रहा था वहाँ पर. सो शी हैड टू गेट द सेंटर टू इंटरवीन. सो देर आर सो मेनी इशूज. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहने को CSR है, बट CSR के फंड्स रिलीज करवाने में देर इज अगेन सो मच ऑफ करप्शन. उनको जाके मैम खुद जाके, कभी सुना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद जाके किसी कॉर्पोरेट के घर जाती हैं और कहती हैं कि आप ये रिलीज कीजिए, एंड व्हाट डज द कॉर्पोरेट गाय से, अब मेरा CFO करेगा, मेरा CEO करेगा, और वो CEO कुछ करेगा नहीं. वाई? बिकॉज एक्चुअली पीछे बोला हुआ है ये मैम आ रही हैं, उनको बाद में कर लेंगे. दिस इज हाउ इट वर्क्स, यू सी. सो फॉर हर टू बी इफेक्टिव, डू फॉलो हर ऑन सोशल मीडिया. क्योंकि मीडिया भी बताऊँ मैं, मैम मुझे वहाँ से भेजती थी कि तुम्हारा रिपोर्टर नहीं कवर करता. मेरा रिपोर्टर 1-2 बार ही कवर कर रहा था. आई एम फ्रॉम अ न्यूज़ एजेंसी, सो आई डोंट हैव अ चैनल ऑफ माई ओन. सो when I send a reporter to do a coverage, that coverage goes to all the channels, right? Including Tamil Nadu, including across the country. वो कवरेज लगेगी नहीं. मैं मैम को बोलूँगी मैम मैं भेजती तो हूँ पर वो कवरेज कहीं लगता नहीं है. वाई? बिकॉज पीपल डोंट वांट टू सी. आप देख लीजिए टेलीविजन सेट, एक मुसलमान को बिठाते थे, एक हिंदू को बिठाते थे, लड़ो लड़ो लड़ो, और उससे TRPs आ जाएंगे. मतलब एक दूसरे को गाली दो, और आज गाली से आगे बढ़ चुके हैं लोग. दैट इज़ वॉट पीपल वॉन्ट टू सी. या फिर कोई सेलिब्रिटी का, मतलब वो किसी कमरे में बंद सबको. दिस इज़ द काइंड ऑफ लेवल. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज रॉन्ग विद द सेलिब्रिटीज, वॉच इट, डू इट. But what has happened is this is what we've reduced to. So I used to tell ma'am ये कोई देख ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? मैं कवरेज तो करा दूँ पर अगर कोई देखेगा नहीं. तो she found a solution for herself. She went on social media. She said अगर कोई नहीं देखता कोई बात नहीं, मैं सोशल मीडिया में डाल देती हूँ. And she got this immense response. She got so many people involved in her projects and programs because अपने हाथ जगन्नाथ. It's literally she decided to be her own media. And hats off, ma'am, that you took it upon yourself. You didn't get bogged down. And that's her life. जहाँ पे एक दरवाज़ा खुला बंद हो मिला, दूसरा दरवाज़ा मिल जाएगा. उसे खोलो, दरवाज़ा नहीं तो खिड़की से ही वहाँ से कूद मार लो, बाहर निकलो. She's found excuses to get her work done, not excuses to run away from her work, which is phenomenal. So, people admire her also, and they are also uncomfortable with her because she does things which make people scared that oh मेरे zone में ना आए.
मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो आई एडमायर हर. सो आई फील दैट हर लेवल ऑफ no nonsense attitude. Another thing which I really like is about her childlike innocence, her childlike enthusiasm for everything. मतलब आप MC कर रही हैं पर वो खुद everything is being done by her, right? And her team. I have never been to a book release event, I'll tell you, where the author asks the team members to get up, the researcher to get up and take an applause. Doesn't happen. Nobody shares glory. So, like she said, she came back with one bag of clothes and rest were documents. See, I come from a civil servant background, service background too. My father was in the civil service, so I know that papers and books and things are so important. Me as a journalist, I have never had respect. I don't know, I should learn. Maybe now it's too late, but still, I should learn that documentation is extremely important. And I don't want to talk more so much. I would rather that, people who have come ask you questions, ma'am. So a few housekeeping rules. I will send the mic over to you. Please, आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं. You can be a student, you can be a homemaker. आप जो भी हैं, अगर थोड़ा सा बता दें. And instead of giving long information about yourself or about anything, if you could ask the question, because we want Kiran ma'am to give her point of view. So I will take the liberty, ma'am, of beginning. The conflict between, of course, being a journalist, I will ask about conflicts. So about a lieutenant governor and chief minister, lieutenant governor and bureaucracy. आपने काफ़ी सारी बातें बताई उसमें. You're seeing what's happening in Bengal today and, the conflict between the governor and the chief minister. You're seeing in Delhi, one chief minister has left and the other one is trying to make inroads. लेकिन conflict ज़रूर होता है. Is this conflict good, bad? Is it a good checks and balances in our system ताकि एक autocrat ना बने? Or do you feel that इससे governance में कमी आती है? Thank you, Smita. कॉन्फ्लिक्ट से किस लिए कॉन्फ्लिक्ट है? सुधार के लिए या बिगाड़ के लिए? अगर तो सुधार के लिए कॉन्फ्लिक्ट है कि मुझे ये स्कीम चाहिए, ये बेटर है, या दूसरी स्कीम बेटर है, ना कि ये स्कीम में मेरे लिए कुछ नहीं है. सवाल उठता है कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का. सो वेरेवर स्मिता देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, वन हैज़ टू सी कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, इसका मोटिव क्या है. अगर मोटिव सेल्फिश है तो वो कॉन्फ्लिक्ट नुकसान पहुंचाएगा उस गवर्नेंस को, और अगर अनसेल्फिश है तो जो भी निर्णय होगा वो प्रोग्रेस की तरफ जाएगा. तो आज कल मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट देखा है. इट्स मोर ऑफ सेल्फिशनेस. व्हाट्स इन इट फॉर देम. इंडिविजुअल के लिए क्या है? इट्स अ फाइट ऑफ टू ईगोज. इट्स नॉट मेरी फाइट. अगर चीफ मिनिस्टर के साथ थी, वो थी जैसे CSR था. फॉर इंस्टेंस बुक में शॉर्ट आंसर ये देती हूँ. जैसे CSR था, तो जब मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि पानी की स्तर पौंडीचेरी में गिरती जा रही है, पैसे हैं नहीं हमारे पास, तो ये भरेंगे कैसे इरिगेशन कैनाल्स? पानी जब आएगी तो कौन साफ करेगा? कोई इरिगेशन कैनाल्स चोक्ड थे, उनकी डीसिल्टिंग नहीं हुई होती. डीसिल्टिंग के लिए पैसा चाहिए. PWD के पास पैसा नहीं था और कॉन्ट्रैक्टर को उधार देने को तैयार नहीं था, कि उनको पता था PWD ने इन्होंने पैसा कभी देना ही नहीं. तो अब लोग आ रहे हैं मेरे पास ओपन हाउस में. मुझे पता है कि पानी का स्तर गिरता जा रहा है, नमकीन पानी आई जा रहा है और मेम्ब्रेन्स नीचे की एक्विफायर्स फट रही हैं, सी वाटर बीच में घुस रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं और गरीब आदमी बिस्लरी खरीद रहा है. तो मैंने फिर कहा कि ऐसे नहीं चलेगा. तो डोनर्स को पकड़ा, जिन्होंने डोनर्स पानी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लुक्सा है, वर्लपूल्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये तो पानी के बिना अपना सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते. तो मैंने बोला तुम पानी यूज़ कर रहे हो, मुनाफा कमा रहे हो, दीजिए पैसे वापस. जिस इरिगेशन कैनाल के पास आप हो, जिस इरिगेशन कैनाल का पानी ले रहे हो, उस इरिगेशन कैनाल को अडॉप्ट करो. और तुम, हमको पैसा नहीं चाहिए, आप मशीन हायर करो और सफाई करो इरिगेशन कैनाल की, ताकि बारिश जब आए तो वो भर जाए. तो हुआ क्या? मेरे चीफ मिनिस्टर ने कहा जो किरण बेदी कह रही है इसके ऊपर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसने पैसा खा लिया. मुझे फिर अखबार के थ्रू कहना पड़ा. अखबार वाले छाप भी जा रहे,
और उन्होंने कहा हिमालयन स्कैम, द वर्ड, मेरे पास न्यूज़पेपर क्लिपिंग है जिसमें लिखा था चीफ किरण बेदी कमिट्स हिमालयन स्कैम, सीबीआई शुड कम, उसने डोनर से पैसे ले लिए। मैंने कहा, मैंने डोनर को कहा है मशीन वाले को ही पैसे दो, मुझे पैसा नहीं देना एक राजनिवास को, मशीन तुम हायर करो, डोनर जो है वो डायरेक्टली उसको दे, मुझे तो साफ इरिगेशन कैनाल चाहिए। कहने का कोई फ़ायदा नहीं था, उसने जो कहना था कह दिया। उसका मतलब था कि मैं शक डालता रहा हूँ लोगों के दिमाग में कि किरण बेदी बेईमान है, उसका मकसद ये था। मेरा मकसद जवाब देने का ये था कि नहीं भाई, मेरा मकसद पानी लाने के लिए था। सो कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का? नियत का। नियत का हुआ क्या? मैं गिव अप कर सकती थी, मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मैंने पता था कि ये सूखा पड़ जाएगा पौंडीचेरी में, हर हालत में तुमने जो बोलना बोलते रहो, मैंने जो करना है करती रहूँगी। दैट्स फियरलेसनेस अबाउट। तो उसके हुआ क्या साथियों, 7 मीटर पानी ऊंचाई करके आई हूँ वापस, 7 मीटर्स, जो रोज़ 3 मीटर गिरता जा रहा था। जब मैं वापस आई, 7 जो वाटर का एक्सपर्ट है, वाटरमैन, उसने कहा मैम नाउ द लेवल हैज़ गॉन अप बाय 7 मीटर्स, क्योंकि कोई कैनाल नहीं हमने छोड़ा जिसकी सफाई नहीं हुई, और जिसमें पानी बरसात बड़ी अच्छी आई वो भर गए, और भर के कुएं में भी पानी आ गया, पॉन्ड्स में भी पानी। सो कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है नियत का, तो निडरता बहुत ज़रूरी है। जिसकी नियत अच्छी है उसको हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो भी हार जाए तो फिर पब्लिक भी हार जाएगी। Any questions? Anybody? Name is Megha. Yeah, we can hear you. I'm from 10 News. मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप फेयरलेस गवर्नमेंट की बात करती हैं और जो हमारी सरकार है वो गुड गवर्नमेंट की बात करती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे गुड गवर्नेंस बिना फेयरलेसनेस हो ही नहीं सकती मैम, लेकिन वो बात फेयरनेस, Fair and good. फेयर एंड गुड, हाँ। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा विवाद भी रहे हैं गवर्नमेंट से, तो उस पे आपका कैसा एक एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप बताना चाहेंगे उसके बाद? What is your question then? Is there? I think what she's saying is that there's something called fair and there's something called good. Sometimes when you're doing good governance, it need not be fair in the sense of, and then there could be some conflict. गवर्नेंस और फेयरनेस तो इकट्ठी चलती है। गुड गवर्नेंस तो जस्ट गवर्नेंस होती है, न्यायपूर्वक होती है, सबके भले के लिए होती है। तो अगर मैक्सिमम भला हो रहा है और जो छोटा वर्ग है जिसका नुकसान हो रहा है, जिसकी जेब कट रही है, मान ली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसकी तो जेब कट रही है क्योंकि वो तो उगराई कर रहा था, और जो मेजॉरिटी है उसको भला हो रहा है। तो गुड एंड फेयर गवर्नेंस हैज़ एन एलिमेंट ऑफ करेज, हैज़ एन एलिमेंट ऑफ निडरता। अभी स्मिता मैम ने जो है ना मिड डे मील की बात की है क्वेश्चन, क्योंकि एजुकेशन हब होता है कॉलेज स्कूल, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ है कि खाना बच्चों के लिए हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है मिड डे मील पे, सब कुछ आ रहा है बच्चों के लिए, लेकिन हम एजुकेशन की बात करें, उसकी चेकिंग क्यों नहीं होती कि कितना पढ़ाना चाहिए बच्चे को? तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मिड डे मील भी होना चाहिए लेकिन वो सेकेंडरी है, लेकिन एजुकेशन के लिए आप क्या कहना? थैंक यू। सेकेंडरी बिल्कुल नहीं है बेटा, इट इज एजुकेशन पे मैम कोई वो नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट। आप ना किताब पढ़िए, उसमें आपको बता देंगे मिड डे मील जो है इट्स लाइक अ मैग्नेट। मिड डे मील की वजह से बहुत सारे, आप देखिए, आप सोचते नहीं है ना, आपके लिए खाना आ जाता है, आप यू डोंट हैव टू वरी कि अगर मैं घर जाऊंगी रोटी होगी कि नहीं, माँ बना के आपको खिला देंगी, राइट? सो यू डोंट अंडरस्टैंड द पैंग्स ऑफ नॉट हैविंग फूड, ऑफ नॉट बीइंग श्योर कि अगला मील आपको मिलेगा कि नहीं। तो बहुत से बच्चे, लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल जाते हैं सिर्फ उस मिड डे मील के लिए। हाँ, हम ये समझते हैं कि मिड डे मील इज़ नथिंग, खाना खा के चले गए। बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है, और ना ही उन पेरेंट्स की गलती है। कभी कभी वो बच्चों को भेजते ज़रूर हैं फॉर मिड डे मील, क्योंकि एक मील जो है वो उनके लिए राशन बच गया। दैट इज़ द सैड रियलिटी ऑफ इट। तो वो जाते ज़रूर हैं, लेकिन मैम बताएंगी कि कैसे उन्होंने, in addition to that midday meal, she started getting the bathrooms and the classrooms cleaned and started encouraging the teachers to teach more than anything else, to teach. आप किताब पढ़िए बेटा, आप समझ जाएंगी। Next question. Hello. हाँ, I'm just coming to you. Please go ahead. I have no question. स्मिता, मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ मैडम के साथ। स्मिता के साथ तो मैं काफ़ी टीवी डिबेट में रहता हूँ। मैं एम रिटायर्ड ACP फ्रॉम दिल्ली पुलिस। ऑनरेबल मैडम किरण बेदी,
जब मैं दिल्ली पुलिस में 36 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ, जब मैडम फर्स्ट IPS महिला थी, तो मैं जहाँ मैं गांव में बॉर्न हुआ था, वहाँ एक मैगज़ीन आती थी, और वो शायद मैगज़ीन डायमंड की हुआ करती थी या कोई बुक थी जिसमें पहली बार मैडम की फ़ोटो देखी थी। अब ये जर्नी पूरी हो चुकी है मैडम की मेरे साथ, और मैं पौंडीचेरी गया, किस तरह से मैडम के साथ वहाँ की बात हो रही है। पौंडीचेरी जब मैं गया था, आपने बुलाया था राजभवन में, मुझे रोका था मद्रास एयरपोर्ट पर, राजभवन की गाड़ी, सब लोग चौंक गए कि इस गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है जिसमें अशोक का निशान लगा हुआ है। तो बड़ा एक अच्छा एक लंबी जर्नी, और आज आपके सामने बैठे हुए हैं, और बड़ी खुशी की बात है, आज आपका बर्थडे है। मेरी रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ आज मैडम का बर्थडे सेलिब्रेट करें, और जोर से तालियां प्लीज़, माई रिक्वेस्ट। स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जोर से तालियां बजाकर मैडम का बर्थडे सेलिब्रेट करें। ये जो मैडम की जर्नी है, ये बहुत लंबी जर्नी है, एक ना केवल महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बल्कि जिस तरह से एक सोसाइटी के अंदर मैसेज दिया है एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, तो कामयाब थी ही, बल्कि एक बढ़िया ओरेटर और एक बढ़िया तरीके से उन्होंने जिस तरह से किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कैन वी ऑल सेटल डाउन प्लीज? Please settle down. This is the kind of response I saw even in Puducherry, you know. You've touched so many lives, ma'am. So even though, like somebody was saying, you've had controversial political journey also. Yeah. You've got to respect the chair. She's the chair. Thank you. Thank you. This is the kind of hero worshipping. Like I was saying, young kids also come to her. Hanji, aap puchiye. Good afternoon. Let the Q&A go on. Wait, please. Go ahead. Yeah, go ahead. Good afternoon, ma'am. I'm here in the front, ma'am. Good afternoon. My question... May I just request you all, if you want more participation, तो अपना क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट रखो, और बुक ओरिएंटेड जो प्रेजेंट किया गया वो मेरे ऊपर मत बोलना। I've written 2 lines, so I just want to repeat that, ma'am. अच्छा, आप अपना नाम बताइए। My name is Sanjay Prakash. And my question is, you have been an IPS, right? And when you're writing the book, so was it, why didn't you take up IS? And your stint as LG, was it more to be fulfilling that unfulfilled dream of being an IS officer? Oh, is that a dream? I'm living reality. Therefore, I just... No, I'm living my own reality. I am where I wanted to be. I am where I was destined to be, but more than destiny, where I wanted to be. क्योंकि मुझे choices दे दी गई थी, being the first woman, I said नहीं, जो मैंने चाहा है वही करना है, और वही कर रही हूँ। ये ईश्वर की कृपा है। Hello, ma'am. There was a person at the back, yes. मैडम आपने नाम मेरा नाम शिवली है, आज़ाद एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से हूँ मैं। मैडम आपने पानी के लिए बोलो ना, ताकि लोग आपको देख पाए। मैडम आपने पानी के लिए कोशिश की, चीफ मिनिस्टर ने डिस्टर्ब किया वहाँ पे, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कहीं कहीं चीफ मिनिस्टर अच्छा काम करना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें परेशान करते हैं? मुझे नहीं मालूम इस वक्त कोई उदाहरण है जिसमें मैं इसमें हूँ तो मैं बता सकती हूँ, जिसमें मैं नहीं हूँ मैं कैसे बता सकती हूँ? ऊपर की बात नहीं करूँगी। हेलो मैडम, राजेश खन्ना मैडम, टोटल खबर से। कहाँ से? टोटल खबर से मैडम, राजेश खन्ना। आप पत्रकार हैं? जी जी जी। मैडम, जैसे कि फेयरलेस गवर्नेंस आपने कहा, तो आपने कहा कि किसी जो काम करना है चाहे नियत हो फेयर हो करते रहना चाहिए, मतलब उसको। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह से कोई सुनवाई नहीं करें, जैसे आजकल विपक्ष की कोई सुनवाई नहीं है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसे फेयरलेस गवर्नेंस को लेकर जैसे कि एक तानाशाह का मतलब एक अनुभव टाइप का हो जाएगा? तो इस पर आप क्या कहेंगे, मतलब फेयरलेस गवर्नेंस का? नहीं, आप ही आप कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही? मुझे तो टीवी बंद करना पड़ता है, इतना जोर से सब बोलते हैं। कौन कहता है सुनवाई नहीं हो रही? आज तो सुनवाई की वजह से कान पक गए हैं, बल्कि कम करना पड़ता है, चैनल चेंज करने पड़ते, इतनी ज़्यादा सुनवाई हो रही है। मैं समझती हूँ सबकी सुनवाई हो रही है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही सुनवाई हो रही है। मेरा नाम राजेश है, मैं हिंद मत नाम से एक पत्रिका निकालता हूँ। मेरा सवाल किरण मैम से है। निर्भीकता तो आपके नाम से ही जुड़ा हुआ है कि किरण बेदी निर्भीक ही रहती है,
इस बुक्स में जब आप लिख रही थी तो क्या आपको कभी सिस्टम के साथ फियर फील हुआ, या आपको लाइफ में मैम कभी कोई ऐसा पॉइंट आता है जब आपको कभी फियर होता है? हाँ, होता है। तंदुरुस्त रहो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फियर होता है कि भगवान कितनी देर तंदुरुस्ती दे रखेगा। जब भगवान आप देखते रोज़ उठ के तंदुरुस्ती दे रहा है तो ये मैसेज दे रहा है, डट के काम करो, मैंने तंदुरुस्ती दी है तुम्हें। एक मैम निर्भीक प्रशासन जब हम पढ़ते हैं तो इसका क्रक्स क्या है? मैं आपके माध्यम से 2 मिनट जानना चाहूँगा। किस चीज़ का क्रक्स? द बुक, इस बुक्स अबाउट बुक। अभी आपने देख तो लिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, थोड़ी मेहनत कीजिए, पढ़ लीजिए, पत्रकार हैं आप। स्मिता, मैं क्रक्स बता देती हूँ। आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। इस बुक का एक क्रक्स है, और ये डिमांड होना चाहिए हर पब्लिक सर्वेंट से। अगर कोई आवाज़ उठानी है, चाहे आप किसी स्थिति में भी हैं, क्रक्स ये है, हर गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलो दफ्तर से काम शुरू मत करें, फील्ड से करें। ये है क्रक्स। क्रक्स ये है कि मान लो एजुकेशन सेक्रेटरी है, एक स्कूल से शुरू करें 9 बजे निकल के और सीधा स्कूल जाए। किसी स्कूल में अनअनाउंस्ड, अगर अनअनाउंस्ड स्कूल, सारे स्कूल के बाथरूम साफ होंगे, सारे स्कूल के टीचर्स हाजिर होंगे, सारे स्कूल के मिड डे मील्स ठीक होंगे, सारे स्कूल की हाजिरी बेटर होगी। होता ही है कोई इंस्पेक्शन का कल्चर नहीं है। तो एक ये कि अगर सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऊपर से लेके नीचे तक, तो जब सेक्रेटरी करने लग जाएंगे तो इंस्पेक्टर तो निकलेगा ही, नहीं तो गैर हाजिर हो जाएगा। सिमिलरली डीजीपीज, अगर डीजीपीज एक थाने में रोज़ निकल जाए, रोज़ सुबह किसी एक पुलिस स्टेशन में, सारे थाने सेट राइट हो जाएंगे, अटेंडेंस बेटर हो जाएगी, रोल कॉल बेटर हो जाएगी, ब्रीफिंग बेटर हो जाएगी, जेलों में वहाँ कैदियों में कोई गलती नहीं होगी क्योंकि डीजी कहीं भी जा सकते, राइट, उनकी बैरक साफ हो जाएंगी। सिमिलरली हेल्थ सेक्रेटरी को ले लो, एक डिस्पेंसरी ले लो रोज़ सुबह। जब सारे सेक्रेटरी, और दिल्ली के एलजी ने तो शुरू यही किया, पिछले 4-5 दिन से मैं रोज़ अखबार में पढ़ रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं फील्ड में निकले हुए हैं। और मैंने 3 दिन हुए पहले ये पढ़ा था, उन्होंने अपने सारे अफसरों को भी बोला है दफ्तर से नहीं, फील्ड से काम शुरू करो, रोज़ फिर जाओ दफ्तर। अगर ये हो जाए दिल्ली, तो दिल्ली बदल जाएगी। गुड आफ्टरनून मैम, मैं कविता दिल्ली से ही और एक सोशल वर्कर हूँ। एजुकेशन फील्ड में काम करती हूँ फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। जैसे आपने मिड डे मील का बताया था मैम, वो मिड डे मील रियली उनके लिए अट्रैक्शन है, इसीलिए वो स्कूल आते हैं। बट ड्यूरिंग पैंडेमिक हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया और अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, सॉल्व पर हो नहीं रहा है। पैंडेमिक के दौरान सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों का नाम वापस ले लिया कि वो फीस भर नहीं पा रहे थे, और वो बच्चे जो 13 से 16 ईयर्स के लिए वो हाउस होल्ड हेल्प के लिए निकल गए। तो उनका एजुकेशन दोबारा रिवाइव करने के लिए हमने क्या मेहनत करनी चाहिए, मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। क्योंकि हमने हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, मम्मी पापा ने बोला हमारे पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं है, हमने काफ़ी कोशिश की डोनेशंस वगैरह करके 10-15 बच्चों के एडमिशन्स कराने के लिए, बट सम पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द एजुकेशन, दे वांट टू स्टडी। और स्पेशली लड़कियों को हम ध्यान देते हैं, लड़कियों ने अपनी जॉब वो छोड़ दी, एजुकेशन और घर के काम पे लगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले पाएंगी या नहीं, ये मुझे पता करना है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू। मेरी एक स्वयंसेवी संस्था है नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, सारी बवाना के एरिया में काम करती है, जाके उदाहरण देख लीजिए कैसे काम करती है। वो सारी रेमेडियल एजुकेशन कर रही है इस वक्त। उनको पता है कि पिछले 2 साल से इन बच्चों के पास वो छोटा सा फ़ोन भी नहीं था। उन्होंने बच्चों को घर से बुला के रेमेडियल एजुकेशन शुरू करी कि जो 2 साल की जो नुकसान हुआ है वो हम पूर्ण कैसे करें। ये हर गवर्नमेंट स्कूल को ज़रूरत है, हर प्राइवेट स्कूल को ज़रूरत है। आफ्टर ऑल किसी ना किसी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, दे शुड डू रेमेडियल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, जिसमें जो कमी थी वो पूर्ण की जाए। नीतू, कैन यू स्टैंड अप? आपने अगर ये उदाहरण देखना है तो जाओ बवाना में रेमेडियल एजुकेशन नवज्योति का उदाहरण देखिए। हम लोग इसी तरीके से बच्चों की कमी दूर कर रहे हैं बाय डूइंग रेमेडियल क्लासेस। इस वक्त हर प्राइवेट स्कूल को, हर गवर्नमेंट स्कूल को एक नीड असेसमेंट करनी चाहिए कि एक बच्चे का नुकसान क्या हुआ 2 साल, और वो जो नुकसान है वो फिर क्लास वाइज लगाओ, पूर्ण हो जाएगा 5-6 महीने में। तो इसका इलाज ये है, हमें सोल्यूशंस हैं, हम स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं, सरकारी भी करें, प्राइवेट भी करें।
Am I right, Cindy? You doing remedial education by identifying the training needs. बहुत खुशी की बात है. तो solution यही है ना? Hello ma'am, I'm Pooja Bharti from Varvar News. First of all, happy birthday to you. And ma'am, आप सबकी इंस्पिरेशन है एंड मुझे पूरा भरोसा है कि इस किताब में हम सभी के लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल बातें ज़रूर होंगी. मैं पूछना चाहूँगी कि हम यंग जनरेशन के लिए इस किताब में क्या है ऐसा कि हम इतने इंस्पायर हो सकें कि एक और किरण बेदी हम सबके सामने आ जाए. Now that's the toughest answer question. अच्छा, मैं अपने मम्मी डैडी से पूछती हूँ कि कैसे और बनाया जाए, ये तो मुझे भी पता नहीं. सो आई थिंक वेट करो, ऊपर जाऊंगी, जब ऊपर जाऊंगी ऊपर से मैसेज दूंगी आपको. हेलो मैम. एक बार कपिल पाजी से पूछा गया था आफ्टर 83 वर्ल्ड कप और नजीक, तो उनसे भी पूछा गया था, तो उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिया था जैसे आपने दिया कि मम्मी पापा से पूछा. मैं कपिल की नकली लगाई मैंने. मैम हेलो. मैम इधर. मैम नमस्कार. हाँ जी मैम. मैं बंसीलाल ओपन वाइज न्यूज पेपर प्रेस से हूँ. मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो बुक का नाम है निर्भीक प्रशासन समृद्ध पुदुचेरी, आपने वहाँ पे 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, लेकिन चौथे साल आप पूरा नहीं कर पाए, आपको पहले ही भेज दिया गया. पहली चीज़ तो ये. तो 4 भी नहीं हुआ, 5 भी नहीं हुआ. हाँ 5 भी नहीं हुआ. वेरी गुड. बिल्कुल. लेकिन हाँ वही तो कह रहा हूँ ना. लेकिन आपने वहाँ पर अपने किताब में आपने अपने प्रशासन की बात करी है, लेकिन जो 10 साल पीछे सरकार रही वो भी क्या उसमें अब उसका समृद्ध पांडिचेरी थी जो आपने दिखाने की कोशिश नहीं करी? क्या वो 10 साल जो सरकार चली वो वैसे ही थी जो जब आपने ही काम किया सरकार का? ये पूछना चाहता हूँ. The book doesn't have, if I may just interrupt, the book doesn't have name calling of the previous administration कि पहले ये सब हो रहा था, it was wrong. She's not bothered about being criticizing. नहीं, मैं जवाब दूंगी आपको. Hold. आप किताब अगर पढ़ेंगे तो इस किताब में she has written about the problems she is facing or she has faced in bringing about changes in a quick manner. She is not critical. जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही थी about bathrooms, right? जो बाथरूम वो बनाना चाहे, when she went and she said, right, that you go to a place and you see that things are not getting done. जो बाथरूम की चाबी है वो मंदिर के पुजारी के पास. Right now, is she blaming कि पहली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने ये गलती की, या जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी गलती है, या फिर पहले के जो अधिकारी हैं उनकी गलतियाँ? नो, इट्स अबाउट हाउ कैन आई चेंज द प्रेजेंट. तो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं कैसे सॉल्व करूं. दिस इज माय रीडिंग ऑफ इट. बट आगे आई थिंक यू रेड इट राइट. आफ्टर जो भी मैंने किया, अरे वो इनहेरिटेंस ही तो था, लेकिन नेम कॉल. एक मिनट, ये बेस्ट का Q&A. आप क्वेश्चन पूछो, आपका पूरा अधिकार है और मुझे आंसर देने दो, लेकिन ये एक डायलॉग नहीं, इट्स अ Q&A. मैं ये कहना चाहती हूँ, भाई साहब आपका नाम क्या है? बंसीलाल जी. और आप क्या करते हैं बंसीलाल जी? ओह ज़रूर, ये जर्नलिस्ट वाला ही क्वेश्चन है. सो तो मैं भी तुमको करेक्ट आंसर जर्नलिज्म को जो सूट करता है वही दूंगी, ठीक है? और वो ये मेरा, सुन ली मेरी बात. आप जब आज प्लीज़ पुस्तक ले जाइए, इसमें आप एक पेज जब पढ़ने लगेंगे पता चल जाएगा क्या क्या छोड़ के गए थे मेरे लिए, जिसको मुझे 5 साल लग गए ठीक करते, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लगाया. One second. Can I get a question from a non-journo? We've had so many journalists. Non-journo. Okay, the lady there, please. Ma'am. Lady there. Yeah, go ahead. Take a mic, please, because others want to hear you. Ma'am, I am from education industry, from Amity University. So ma'am, मैं ये चाह रही हूँ, जैसे आपने यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, अपनी बुक लॉन्च की है, अगर वर्चुअली आप हमें थोड़ा वक्त दें और हम आपका virtually पूरे universe, like we have Amity Universe also, and many more institutes. Speak to her after that. Do you have a question? Please, that's a good. Do you have a question? This is what, ma'am, I wanted to. After the event, please come. Thank you so much. जी बताइए. मैम, मेरा नाम अजहान अंसारी है और मैं न्यूज़ इंडिया से हूँ. मैम, आपने जिस तरीके से पुडुचेरी की ज़मीनी हकीकत और हालात अपने बुक में लिखे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या फेयरलेस गवर्नेंस की ज़रूरत बल्कि एक पुडुचेरी की नहीं, क्या पूरे इंडिया को ज़रूरत नहीं है? बहुत आसान है, इसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं चाहिए.
जो मैं आपको बता रही हूँ इसके लिए कोई बजट नहीं चाहिए। क्या मुश्किल है कि सरकारी अफसर 10 बजे ऑफिस आने से पहले 9 बजे फील्ड में चला जाए? म्युनिसिपल कमिश्नर गंदे पार्क देख लेगा, डॉक्टर गंदी डिस्पेंसरी देख लेगा, एजुकेशन सेक्रेटरी स्कूल में जो आधे टीचर्स नहीं है वो देख लेगा, राइट? कौन क्या चीज़ नहीं, अस्पताल जाओगे तो सफाई हुई है कि वो भी देख लेगा। जब वो सीनियर देखेगा तो जूनियर क्या बचेगा? अपने आप काम करेगा। इसके लिए पैसा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। वही गाड़ी जो आपने एक सीनियर अफसर को दी है, जिस रैंक का भी, उसी गाड़ी से वो पहले फील्ड में जाए और काम करे। 1 घंटा भी बहुत है। उसके बाद 1 घंटा जो देखे सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे। अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है सेक्रेटरीज का, एजुकेशन का, टीचर्स का, पुलिस ऑफिसर्स का, जो डीजीपी थाने में देके व्हाट्सएप बना दे। तो जब व्हाट्सएप पर डालेगा कोई बचेगा? सब घबराएंगे कि अरे किसका पोल खुल जाएगा। तो जब पोल खुलने लगेगा सीनियर की नज़र में देश बदल जाएगा। ये डिमांड करो, हर अफसर शुरू करे काम अपने फील्ड से। दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल द चेंज रिक्वायर्ड। और जब फील्ड में चलेगा आपको दिखेगा, उसका नाम पता चल जाएगा, वो आपसे बात करेगा, आपकी तो गुफ्तगू वहीं Q&A वहीं हो जाएगा। 1 घंटा पहले उसको बहुत मुश्किल होगा, पहले 2-3 महीने उसको बहुत मुश्किल होगा। 3-4 महीने के बाद लोग नमस्ते करने लग जाएंगे। पहले उसको पूछेंगे, फिर कहेंगे धन्यवाद, आपकी वजह से काम ठीक होने लग गया। 1 सेकेंड इन्हें बोलने दीजिए, फिर आप आ जाइए। हाँ। Okay, so hi ma'am, my name is Nancy from OM Logic, a digital marketing agency. Proper mic. मेरा question actually हटके है book से. Actually, you are in a very powerful position, but when I mean I've seen in so many fields we are sometimes not thought of as equal because we are females at the end of the day. Females? Sometimes it happens that you know, we are females. That is why we are not thought of as equals. Okay, so sometimes आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि sometimes gender biasness ऐसी हुई हो जहाँ पे आपको give up करने का ऐसा हुआ, but आपका एक book का title ही fearless है, तो how did you overcome that? Do you know how she got her name as Crane Bedi? You know, it happened before your generation. आप बताएं मैम, because यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं who, you know, after that they don't probably remember. आप गूगल करके देखो, नहीं तो मैम बता देंगी उनका नाम क्रेन बेदी क्यों पड़ा। बताइए मैम, ये तो आपको बताना पड़ेगा। आप ये कहानी सुनाइए, आज क्यों बने आप क्रेन बेदी? थोड़ी उम्र बढ़ गई ना, तो सोचने की कोशिश करती हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ आपको कि क्रेन बेदी कैसे पड़ा। लेकिन आपका प्रश्न जो था कि फीमेल्स को हमको कमज़ोर सोचा जाता है, और मैं पावरफुल पोजीशन में थी, लेकिन फीमेल्स को कमज़ोर सोचा जाता है। एंड इन एवरी फील्ड ऑल्सो, जब कोई पावरफुल पोजीशन में होता है, इवन इफ इफ इट्स अ मेल, वो जो भी कुछ डिमांड करते हैं, जो भी उनके पास एक अथॉरिटी होती है, बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स दे आर नॉट थॉट ऑफ एज इक्वल। हम उनकी जो भी वो बात बोलते हैं, वी जस्ट टेक इट लाइटली समटाइम्स। तो फीमेल्स के कर्मों से थॉट बदलेगी। पांडिचेरी की थॉट कैसे बदली? जब मैंने इनॉग्रेशन पे ही कह दिया था कि ट्रस्ट करेंगे, एम्पावर करेंगे, अकाउंटेबिलिटी देगी। कहा नहीं, डट के कहा ना। सो क्या गया, पहले दिन जब मैंने ओथ सेरेमनी ली LG हाउस में, मैं फीमेल थी, मैं नमस्ते करके चाय पी के वापस चली जाती, जा सकती थी। मुझे बताया गया था कि प्रथा कोई नहीं है मैडम, LG हाउस में इधर प्रथा नहीं है, जब ओथ लें तो आप स्पीच दें। मैंने कहा मैंने देनी है, मैंने देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा मैं महिला हूँ या पुरुष, मेरे दिमाग में था मैं एक जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेटर आई हूँ, मेरी एक जिम्मेवारी है, और लोग मुझे देख रहे हैं कि कौन है ये। मान लो मैं बैठ जाती, चुप बोल करके। राजनिवास में सुंदर सी जगह थी, बड़े सारे बैरे थे, खाना बहुत अच्छा था, कमरा बहुत बड़ा था, पैलेस था, मैं बैठ जाती। तो क्या थे, लेडी आई है, आराम कर रही है। ये लेडी नहीं आई है, ये एडमिनिस्ट्रेटर आया है, वो पुरुष हो या महिला।
सो ये महिला पर डिपेंड करता है या पुरुष पर डिपेंड करता है वो क्या मैसेज देना चाहता है। सो इस वक्त जेंडर की बात नहीं है, इस वक्त अपनी हिम्मत की, इंटेंशन की, काबिलियत की और निश्चय की बात थी। मैं वहाँ निश्चय से गई थी कि मैं जितनी देर भी वहाँ रहूँगी ऐसे सेवा करूँगी जिसमें पुडुचेरी का भला होगा। इसीलिए मैंने पहला मंत्र दिया था प्रॉस्परस पुडुचेरी। प्रॉस्परस का मतलब सभी की प्रॉस्पेरिटी, सबका उद्धार। सो याद रखना, काबिलियत को लोग सैल्यूट करते हैं, इस वक्त जेंडर को नहीं देखते। सो काबिलियत को करें, आप काबिल बनो, आप आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आप काबिल नहीं बने, पुरुष को भी आधार देंगे, ऐसे साइड में करें। और देश में काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं। मैम एक सेकेंड, 1 minute बेटा, आई एम कमिंग टू यू। Much before there was a bulldozer Baba, there was a crane Bedi. 30 years before, 40 years before a bulldozer Baba, there was a crane Bedi. अब आप नहीं जा सकती बिना हमें बताए। अच्छा, वो ना प्रवीण दत्त बैठी है, मेरी ACP ट्रैफिक थी तो प्रवीण कुछ बोलना चाहती है। मैं अगर ये थोड़ा ठीक, अगर ठीक बता देगी तो मौज। चल बता, माइक ले। अरे तू तो प्रेजेंट दे रही है। नहीं वो यहाँ रख दीजिए। अच्छा यहाँ रख दो प्रवीण। अब नहीं, मुझे एक आदेश मिला, मैं आपको जवाब, हाँ दो, बोलो अब ब्रीफली जवाब दो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैडम की इस जन्मदिन पर हार्दिक मुबारकबाद सब देंगे एक बार। ये क्रेन बेदी कैसे बनी ये इतिहास मैं जानती हूँ, आप में से कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं उसमें सब इंस्पेक्टर थी, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। अच्छा माइक को थोड़ा दूर रखो। हाँ जी, मैं थी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, और रोड सेफ्टी एजुकेशन और पब्लिक सेल को मैं हेड करती थी। मैम के आने के बाद तो डर तो बहुत रहता है, एक IPS है और उस समय तो सीनियरिटी बहुत काउंट किया करती थी। मैडम ने देखा इम्प्रॉपर पार्किंग का प्रॉब्लम हर जगह था, हैज़र्ड मैनर में लोग पार्किंग करते थे, तो हम लोगों ने क्रेन हायर की मैम के। और क्रेन क्या था, क्रेन का ऐसा दहशत बैठा और उसके साथ एक माइक लगा होता था कि जल्दी अपनी गाड़ी उठा लो, किरण बेदी आ रही है। और मेरे ACP थे VR किशन, वो कहते थे मेरी आवाज़ सुनो। उस समय के जो कैंपेन मैडम के साथ हुए, खासकर एशियन गेम का टाइम था, पब्लिसिटी, हाँ 82, पब्लिसिटी मटेरियल वाज एक्सीलेंट। शाबाश सर्विस इन्होंने शुरू की टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, और बहुत अच्छी स्कीम थी और हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला मैडम को, और मैडम ने आगे प्रसाद हमको दिया। तो मैडम के कोई कितनी बातें मैं कर सकती हूँ, मैं पूरी किताब लिख सकती हूँ मैडम के ऊपर क्योंकि इतना एक व्यक्तित्व होने के बावजूद शी वॉज डाउन टू द अर्थ, दैट वॉज हिज फर्स्ट क्वालिटी। मुझे याद है एक दिन हम चालान करने गए, पहले रोड सेफ्टी कैंपेन में 4 बजे के बाद वी आर नॉट सपोज टू सिट इन द ऑफिस, वी आर ऑल ऑन द ग्राउंड। माई इंस्पेक्टर रामलुभाया बहल, वी ऑल गो टुगेदर इन एवरी एरिया विद मेटाडोर, एंड फिर लोगों को एजुकेशन बनाना, ऐसे करो वो करो, जो एजुकेशन का एक ज़रूरी था इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वो करने के बाद मैडम का जो एक रुतबा था, एक बार ये मेरे साथ हम लोग चले गए इन्फोर्समेंट करने के लिए। इन्फोर्समेंट करते करते एक स्कूटर वाले को मैंने पकड़ लिया। तो मैडम तो बड़ी बोल्ड थी, लेकिन मैं इनकी अपोजिट थी। ये मैडम को पता है मेरे बारे में, बड़ी इमोशनल हो जाती थी मैं। तो मैडम ने कहा आंसू बंद कर दिया कर। आंसुओं से बड़ा कमज़ोर बंदा हो जाता है, लेकिन आदत है। तो हम लोग ने चालान किया, और स्कूटर वाले भाई बड़ी कंप्लेंट थी 3 व्हीलर स्कूटर वाले के बाद, कहते हैं कि आप आइए स्कूटर में। हमने एक पकड़ लिया बेचारे को। अब 50 रुपये जुर्माना उस दिन होता, कोई उसमें लिमिट नहीं थी, 50 से भी कम जो दे दे, 25 दे दे तो भी काउंटिंग हो जाती थी। जब मैंने उसको पकड़ लिया तो मैं कहा मैडम ये तो गलत आदमी पकड़ा गया। भाई वो कह रहा है जी देखो मैडम मैं तो घर जा रहा था और मेरे पास तो सिर्फ 18 रुपये है और मेरे पास खाने के लिए भी आज का, क्यों बड़े बहुत अच्छे भी लोग हैं 3 व्हीलर वाले। हमने उसी समय मैडम ने बोला छोड़ दिया, बस हो गया, काम हो गया, बड़ी इन्फोर्समेंट हो गई है, अब चलते हैं। ये तो हालात हैं। तो मैम के बारे में मैं कितना कहूँगी मैं आपको नहीं बता सकती। एशियन गेम का पीरियड, और सबसे ज़्यादा मैडम की जो खूबी रही कि इन्होंने फील्ड में मैक्सिमम काम किया, उसके बाद ये ऑफिस में आती थी। हर जगह वॉच रखना, मेरा TI कहाँ क्या काम कर रहे हैं किस, और एजुकेशन माइंड और रिफॉर्म्स के लिए। पुलिस वाले, मैं उस दिन परेड में गई थी और परेड आजकल मैं कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ एक मैसेज ये मिला था कि हमें बड़ा अफसोस है कि मैडम दिल्ली पुलिस कमिश्नर नहीं बनी, नहीं तो हमारा बहुत सुधार हो जाता।
अब आप इससे अंदाज़ा लगाते हो। मेरी आज इस मौके पर मैडम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं लास्ट मोमेंट पर मैंने प्रेम को टेलीफोन किया, मैडम ने टेलीफोन नहीं उठाया, तो मैम प्रेम मेरी कुलीग रही। मैं कहा प्रेम आज तेरी मैडम का बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारक। कह रही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रोग्राम हो रहा है। मैंने तो घर जाना था, सोचा, लेकिन इतना अच्छा मौका मिला, मैं फटाफट अपने को तैयार होकर नाश्ता वास्ता छोड़ा। मैं कहा चलो, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मेरे मैडम के सामने और आप सारे ऑडियंस से बोलने का मेरा। एक बार किरण बेदी मैडम के लिए आप सब हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू, लॉन्ग लाइफ टू यू, मे गॉड गिव लव। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे। I think we'll have to. मैम को दे दीजिए माइक। मैम आप 1 मिनट, आप पहले सारे बैठ जाओ। आप बैठ जाइए, मैम आएंगी, आपके पास आएंगी। आप पहले प्लीज बैठ जाइए। Requesting all of you to remain seated, please. सबके साथ आप प्लीज बैठ। नो 1 मिनट, आपको बताती हूँ जो प्रवीण भूल गई। Take photographs with all of you. Don't worry. Please sit down. Please remain seated till the program is over. बैठो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको बहुत मजा आएगा सुन के। जब मैं, क्योंकि स्मिता बार बार बता रही है कि क्रेन शुरू कैसे हुई, ये बात नाम कैसे बदला, राइट? यस, आई टेल यू हाउ। जब मैंने ट्रैफिक चार्ज लिया तो मैं रोज सुबह 8 बजे घर से चली जाती थी। रोज सुबह 8 बजे। मुझे सड़कें खुद नहीं आती थी दिल्ली की, मैं तो अमृतसर से आई थी और दिल्ली मेरे लिए बड़ा बढ़िया था। मैं तो खुद कनॉट प्लेस के चक्कर काटती रहती थी, कौन सी सड़क कौन सा लूँ, इंडिया गेट में कौन सी सड़क लूँ। स्कूटर चलाती थी उन दिनों में। तो ऐसे ही मुझे चार्ज मिल गया कि ट्रैफिक संभालो। मैंने गवर्नर साहब को बोला, तब खुराना साहब थे, कि सर मुझे दिल्ली की ट्रैफिक नहीं आती है, मुझे यूँ क्यों काम दे रहे हो एशियन गेम्स का। बोले नहीं तुम नहीं करना। तो व्हेन दिस इज़ नॉट, अब मैं सड़क को कैसे समझूं, मैं कैसे इनको गाइड करूं जब मैं खुद नहीं सड़कें जानती एज DCP ट्रैफिक। तो सुबह मैंने नक्शा लेना, सीट पे बैठना, ड्राइवर को बोला घुमा, साउथ दिल्ली दिखा। अब ये सड़क है, अच्छा अरबिंदो मार्ग है, ये कनॉट प्लेस है, कोटलिया मार्ग है, अच्छा आज साउथ है, चल अगले दिन नई दिल्ली चले, उधर पुरानी दिल्ली चले, ईस्ट दिल्ली। मैंने हफ्ते के बीच में नक्शे को समझा, अपनी सड़कों को समझी। लेकिन सड़कों को समझे स्मिता, आई सॉ द प्रॉब्लम्स ऑन द रोड। तो मैं धक्के ही मारती रहती थी, बस गिरी हुई है, उल्टी हुई है, ट्रक उठका हुआ है। तो मैं निकलती थी, मेरे पास ड्राइवर में एक ऑफिसर, मैंने लड़की रखी शकुंतला मेरी ऑपरेटर, हम दोनों दिन बस को धक्के मारते रहे। मैंने कहा ये मेरा काम है क्या, DCP ट्रैफिक, रोज़ मैं बसें ही हटाऊँ, ट्रकें ही हटाऊँ, क्योंकि हटी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं, जैम लगा हुआ है। मैंने कहा कहाँ फंस गई। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा या शकुंतला से पूछा, ये इसका इलाज क्या है। बोली मैडम क्रेन है इसका इलाज। अच्छा क्रेन है इलाज, क्रेन क्या होती है। तो बोले क्रेन है। मैं क्या है हमारे पास, हाँ है मैडम, दो है, एक तो है वर्कशॉप में और एक है लाइन में, लेकिन मैं रखा उसका ड्राइवर ड्रूवर नहीं है। अच्छा तो फिर आएगा कब। मैं क्या, अब फंस गए, DCP ट्रैफिक, सड़क में चला नहीं सकती, जैम है, तो रोज़ धक्के मारूँ आके, ये कौन सा जॉब मिल गया, मुझे कौन सी नौकरी मिल गई। तो मैं सोचती रही। फिर मैंने अपने ऑफिसर से बात की कि इसका इलाज क्या है। मैंने आपको बोला ना, फील्ड में जाओ प्रॉब्लम पता चलती है, दिमाग में आता है कि सोल्यूशन कहाँ है, सोल्यूशन जब ढूंढने लगते हो। तो मैंने ऑफिसर से बात की, मैं टीम वर्क बहुत करती थी, प्रवीण वगैरह, हम लोग एक दूसरे से सीखते थे, जैसे मैंने कहा ना सीख के काम। तो उन्होंने कहा मैडम क्रेनें तो नहीं है लेकिन प्राइवेट क्रेनें हैं। मैंने कहा शाबाश, कहाँ है वो। बोले मैडम सारे प्राइवेट क्रेनों के पास एक एक दो हैं। मैंने कहा उनको 5 बजे मेरे ऑफिस में बुलाओ, हिसाब दें मुझे कितनी क्रेनें हैं, और कल से वो क्रेनें ट्रैफिक पुलिस की। तो बोले वो मैडम कमाएंगे कैसे। मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो गाड़ी उठाएंगे वो खर्चा उनको, जो चलान करेंगे वो पैसा हमें।
तो हर उठाने की गाड़ी का खर्चा उनको मिल गया। वो तो खड़ी थी, अब हमने उनको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दे दी और उनको ये शर्त दी कि तुमने वही उठानी है जो हम कहे, ये नहीं उठाते जाओ जी, तो वही उठानी है। तो वो मान गए क्योंकि उनको बिजनेस मिल गया। उनको मिल गया बिजनेस, हमको मिले डर और दिमाग, और ऊपर से लगाया माइक और कहा हटा लो वरना आ रहे हैं। वो तो रिक्शा वाला चलता चलता ये क्या हो रहा है, बोले यहाँ क्रेन बेदी आई है तो रिक्शे वाले ने मेरा नाम डाला है तो वह उड़ता उड़ता चला गया। लेकिन उसी क्रेनों में, सो मेरे पास 0 क्रेन से उस वक़्त उन दिनों में 16 क्रेनें हमारी हो गई बिना कुछ खर्चा करने। सो दिस इज़ हाउ इट बिकेम। और जगह जगह क्रेन लगेगी, उसमें तो फिर कोई भी नहीं छूटा। मेरी ननंद की भी गाड़ी उठ गई, CBI डायरेक्टर की भी उठ गई और प्रधानमंत्री की भी उठ गई। सर, मैम आपको सच बताऊं, मेरे फादर की भी गाड़ी आपने उठा ली थी। मैम, okay, there's a little boy out there who wanted to ask a question. Yeah, one last question. There's a little boy there. You ask. That's one last question because we are running out of time. The last question. You can ask the questions later. She's going to come and meet with you people. Yeah, first with the boy. Good morning, ma'am. Happy birthday. Ma'am, I want to ask the question that you asked us that there were many difficulties in front of you as there was a different atmosphere of Puducherry. So, ma'am, how many difficulties you faced, and was there any question in front of you that it is impossible? Excellent question. जब तक इम्पॉसिबल की स्टेज आई, मेरी बदली हो गई तब तक पॉसिबल था, लास्ट डे तक पॉसिबल था। मैंने देखा अभी इम्पॉसिबल स्टेज आ रही है, भगवान ने मुझे फटाफट बुला लिया वापस। बाद में ये हुआ, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही।